Hello everyone, welcome to my YouTube channel, MA Classes. Let's start a new topic today, that is the diffraction of light, which is also based on the phenomena of wave nature of light. See, we had already discussed the interference of light, in which for interference to be occurred, we need at least two rays to superimpose on each other. Now, in this lecture, we are going to discuss what is the conditions in order to obtain the diffraction pattern, okay, and what is the path difference and all these things we are going to calculate in this lecture. So stay throughout my lecture, subscribe and share my YouTube channel. Okay, so let's start. See, uh, diffraction is a process in which when a light rays, suppose this is a source of light and this is some obstacle like a small aperture, when it passes through this small aperture, and let's say this is the screen, then what happen is that let's suppose this region get illuminated to this slit and this source. what does it means that यहाँ से जब सोर्स से लाइट जो है निकलेगा तो इस रीजन में हमें एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा, यही हम चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट एक्चुअली जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको कुछ इस रीजन में भी इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है, इस रीजन में. तो होता क्या है, इस एपर्चर का ज्योमेट्रिकल शैडो ये होगा, इस एपर्चर का ज्योमेट्रिकल शैडो ये होगा, बीच में तो होगा नहीं. ठीक है, तो द फिनोमिना इन विच द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस when it passes through a small aperture, a small obstacle, and is spread out in the region of its geometrical shadow, it is called diffraction of light. This is called geometrical shadow. Geometrical shadow. ठीक है, तो ऑब्वियस है आप यहाँ पे लाइट, यहाँ से एक टॉर्च है, टॉर्च को ऐसे फोकस करोगे कहीं पे तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि इस रीजन में जहाँ तक उस टाइम टॉर्च का अपर्चर है उतने रीजन में हमें इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा. बट होता क्या है कि जब आप एक स्मॉल ऑब्स्टिकल से लाइट पास होती है तो वो बेंड आउट हो जाती है, और बेंड होकर किधर जाती है, अपने ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में. फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल शैडो को मैं समझाता हूँ. मतलब ये मार्कर है, मैंने यहाँ से एक टॉर्च मारा, इसके पीछे का रीजन एक शैडो बनेगा. अगर मैं टॉर्च को नीचे की तरफ करूंगा तो शैडो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ऑब्वियस है. तो वो जो शैडो है उसको ज्योमेट्रिकल शैडो कहते हैं. और शैडो फॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि उस रीजन में लाइट तो है ही नहीं. बट एक्चुअली जब आप एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि लाइट जो है उस ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में भी कुछ लाइट हमें इल्यूमिनेशन देखने को मिल रहा है. एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Generally, diffraction of light cannot be seen in our daily life because for a precise diffraction pattern to be occur, the size of this aperture is almost equal to the wavelength of light used. But the wavelength of light is almost 10 to the power minus 6 meter, which is quite smaller than the obstacle or aperture which we are using in our daily life. That's why the diffraction pattern cannot be seen easily. But if you use a sound source or a sound wave instead of this light wave, then sound wave has much larger wavelength, okay, much larger wavelength, due to which we can easily see the diffraction pattern. So this is all about what is diffraction pattern and how is it based on the wave nature of light. Because here, let's suppose a spherical wave front are produced. Now as it passes through this slit, the every point of this slit act as a secondary source which is based on the Huygens principle, and again the wavefront are spherical wavefront are produced. Okay, now there are two type of diffractions. There are two type of diffraction processes. One is called Fresnel diffraction and second one is called Fraunhofer diffraction. Okay, now see, let's suppose this is the diagram in which there is a source, there is a slit and there is a screen. Now on the variation of the distance of this source and screen, this two diffraction pattern is defined. Fresnel diffraction is the diffraction in which the source and screen are quite close to this slit. Okay, and in Fraunhofer diffraction, the source and screen are at large distance from the slit, due to which we use a converging lens in order to focus the light coming from that distance object.
Okay. Now let's study a diffraction of light through a single slit. How diffraction pattern is obtained, why we obtain central maxima, why the first secondary maxima has less intensity. All these things can be cleared out in this lecture. Okay, so stay throughout my lecture. वीडियो को पूरा देखा करिए, सब्सक्राइब करिए बढ़िया से. Okay, so let's suppose this is a source of light. Now generally here we are considering a Fraunhofer diffraction. Okay, so this is a source of light. There is a lens or a converging lens which what produces a plane wave from a spherical wave. Now this wave incident on the slit and it is obtained on the screen. Okay, now here we calculate the path difference. How can we calculate the path difference? The one light which is emerging from this point A and another light which is emerging from point B, and we have to obtain the diffraction pattern at point P. Okay, so the path difference is what? Path difference is P is what? P is what? See, BP minus AP. सिंपल, बिकॉज यहाँ से जो लाइट रेज जाएगी वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन जो लाइट रेज बी से जा रही है उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तभी तो इस पॉइंट को पहुंचेगा. तो वही तो पाथ डिफरेंस हुआ. तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? बीपी माइनस एपी, जो कि सिंपल सा मतलब है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बी एन हो जाएगा. ठीक है, बी एन. चलो बी इज व्हाट? बी एन की वैल्यू देखो तो ट्रायंगल ए बी एन में, ट्रायंगल ए बी एन में ये एंगल सपोज करो कि थीटा एंगल पे ये लाइट जो है इमर्ज आउट हो रही है प्लेन से. ठीक है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये 90 है. ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी एन में, तो बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दोगे तो ए साइन थीटा. ठीक है, ए साइन थीटा, तो जो हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो आ जाएगा ए साइन थीटा. अब एक बात बता, अगर ये पाथ डिफरेंस, जो ये पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है, अगर ये पाथ डिफरेंस लेट सपोज फॉर एंगल थीटा इक्वल टू थीटा वन के लिए, थीटा इक्वल टू थीटा वन के लिए जो ये पाथ डिफरेंस है अगर वो लैम्डा के बराबर हो, तो इस पॉइंट पे जो हमें डिफ्रैक्शन फ्रिंज देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? थोड़ा देखते हैं, समझते हैं इसको. थीटा इक्वल टू थीटा वन पे अगर हमारा लैम्डा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्लिट है इसको तुम दो पार्ट में डिवाइड करो, दो वेवलेट में. एक और पॉइंट यहाँ पे ले लो सी. ठीक है, ए सी एंड बी सी. ए सी से जो लाइट निकल रही है उसका फेज लैम्डा बाई टू है, और जो बी सी से निकलेगा उसका भी लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा बाई टू होगा. यहाँ से ए सी वेवलेट से जो लाइट जा रही है यहाँ पे लैम्डा बाई टू से, वो एक फेज में होगा, और जो बी सी से जो लाइट जा रही है वो भी लैम्डा बाई टू फेज का ही है, लेकिन वो फेज नहीं हम कह सकते, पाथ डिफरेंस है, पाई फेज का होगा. ठीक है, तो जो बीसी से जो लाइट वेवलेट निकल रही है उसका भी पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई टू. लेकिन होता क्या है कि ये दोनों यहाँ पे सुपर इम्पोज करती हैं कुछ इस तरीके से कि ये दोनों अपोजिट फेज में होती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या, एक लाइट रेज ऊपर की तरफ जा रही है एक नीचे की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एक डार्क फ्रिंज मिलेगा. ठीक है, सेंट्रल पे क्या होता है, हर एक स्लिट से लाइट रेज जो है एक फेज में आती है, जिसकी वजह से सेंट्रल पे हमें हमेशा क्या मिलेगा? एक ब्राइट और सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा. उसके बाद हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा. तो सिमिलर पैटर्न जैसे हम इंटरफेरेंस में ऑब्टेन करते थे वैसे ही यहाँ पे भी है. बट इंटरफेरेंस में क्या होता था कि वो जो इंटेंसिटी है इस फ्रिंजेस की वो सेम रहती थी, बिकॉज डार्क में जितना एनर्जी कंज्यूम निकला वो ब्राइट वाला कंज्यूम कर लेता था, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा रहता था वहां पे. यहाँ पे क्या सीन है कि इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, इस मैक्सिमा की इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है. कैसे होता है वो मैं भी बताता हूँ. तो ये चीज समझ आ गई कि अगर हमारा जो पाथ डिफरेंस है अगर वो लैम्डा के बराबर है तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा. क्यों? क्योंकि अगर इसको हम देखो, एक तरीका है इसको समझने का, लैम्डा का है ना, इसको आधे में डिवाइड कर दो, मतलब इस स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो. एक एसी स्लिट हो गया, एक बीसी स्लिट हो गया. एसी से जो लाइट जाएगी उसका भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू है, और बीसी से भी जो लाइट जाएगी उसका भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू होगा. एसी से जो लाइट जा रही है वो एक फेज में होगा, पाई वाले फेज में. बीसी से भी जाएगा वो भी पाई के फेज में ही होगा, लेकिन दोनों का
ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे और यहाँ पे हमें एक डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा। चलते हैं थोड़ा आगे। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि अगर ये लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो, हमेशा हमें डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा। अगर 2 लैम्डा है तो AC और BC लैम्डा लैम्डा का लाइट रेज इमर्ज आउट करेंगे, फिर दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था इंटरफेरेंस के केस में, अगर ये इस फॉर्म में होता था तो हमें क्या मिलता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं होता। यहाँ पे ये फिनोमेना एक सिंगल स्लिट का होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि पाथ डिफरेंस कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि हमें अगर इस फॉर्म में है पाथ डिफरेंस तो हमें डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा। नाउ सपोज अगर ए साइन थीटा जो है लैम्डा हो गया 2 लैम्डा, अगर 3 लैम्डा/2 के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे पहले वाले केस के लिए तुमने क्या किया, इस स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, लैम्डा/2 लैम्डा/2। क्यों? क्योंकि लैम्डा/2 और लैम्डा/2 को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। वैसे ही हम 3 लैम्डा/2 को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, लैम्डा/2 प्लस लैम्डा/2 प्लस लैम्डा/2, तो क्या हमें 3 लैम्डा/2 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड करें, लैम्डा/2 लैम्डा/2 लैम्डा/2, ऐसे समझ लो ये स्लिट है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, ये भी लैम्डा/2, ये भी लैम्डा/2, ये भी लैम्डा/2, और ये पॉइंट P है जहाँ पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को सोच रहे हैं। तो इसकी वजह से जो लैम्डा/2 है, इसकी वजह से एक लाइट रच जाएगी जो कि एक फेज में होगा, इसकी वजह से भी एक लाइट रच जाएगी जो कि एक फेज में होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सेम प्रोसेस है जो भी मैंने लैम्डा के लिए बताया था। लेकिन ध्यान दोगे कि एक लैम्डा/2 वाला रीजन बच गया है, वो लैम्डा/2 वाले रीजन को कोई कैंसिल करने के लिए यहाँ पे अलग से रेज नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें उस पॉइंट पे मैक्सिमा देखने को मिलेगा। लेकिन सेंटर पे जो मैक्सिमा हमें देखने को मिल रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि सारे लाइट रेज सेम फेज में आ रहे थे, मतलब लैम्डा के फेज में आ रहे, लैम्डा के पाथ डिफरेंस पे आ रहे थे सारे लाइट रेज। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे, 3 लैम्डा/2 की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ लैम्डा/2 की वजह से ही एक ब्राइट फ्रिंज देखने को हमें मिल रहा है। तो बताओ, लैम्डा की वजह से जो ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल रहा था, उसकी इंटेंसिटी ऑब्वियस से ज्यादा होगी, लेकिन लैम्डा/2 की वजह से जो इंटेंसिटी मिलेगी वो ऑब्वियस से कम मिलेगी। इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाते हैं, जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डार्क फ्रिंज के लिए ए साइन थीटा जो है एन लैम्डा के फॉर्म में हो, है ना। साइन थीटा काफी छोटा होता है, थीटा काफी स्मॉल होता है, तो साइन थीटा को हम थीटा ले लेंगे। तो ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, सॉरी, ए इंटू थीटा एन। तो थीटा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन लैम्डा अपॉन ए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। थीटा एन, एन इज द ऑर्डर, पहले वाले के लिए निकाल रहे हो, दूसरे वाले के निकाल रहे हो, तीसरे वाले, ये पोजीशन बताता है कि यहाँ से किस एंगल पे हमें डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा। अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, तो वहां पे भी सिंपल ए साइन थीटा एन किस फॉर्म में होना चाहिए, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, 7 लैम्डा/2। ठीक है, तो उस फॉर्म में क्या होगा कि ये जो है 2n+1 इंटू लैम्डा/2 के फॉर्म में होगा। तो वहां से हम ए की सॉरी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा एन की वैल्यू n+1/2 इंटू लैम्डा/ए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। ध्यान देना कि जो डार्क फ्रिंज वाला कंडीशन है वो इंटरफेरेंस पे मैक्सिमा के लिए उल्टा था, और ब्राइट वाला डार्क के लिए था, यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, कितना वैल्यू आता है हाँ, इसका वो देख लेते हैं, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है। ध्यान से पढ़िए, समझिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है वो देखिए। डिफ्रैक्शन पैटर्न, देखो ये हमारा वो हो गया एक्सेस, सेंटर पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, चलो भाई सेंटर पे मैक्सिमम बना, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम मिलेगा,
मिनिमम मतलब डार्क फ्रिंज कितने पे मिल रहा है अभी बताया था, एल लैम्डा, थीटा एन की वैल्यू कितना थी, एल लैम्डा बाई ए थी ना। तो फर्स्ट डार्क मतलब एन इक्वल टू 1 के लिए तो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई ए। तो यहाँ पे लैम्डा बाई ए पे हमें पहला डार्क, इधर माइनस लैम्डा बाई ए पे पहला डार्क। उसके बाद जो दूसरा पहला मिनिमा होगा वो इससे कम होगा काफी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था लैम्डा बाई 2 की वजह से ही सिर्फ इल्यूमिनेशन हो रहा है। सेंटर पे क्या था, पूरे लैम्डा की वजह से हो रहा था, यहाँ पे कम हो गया ना। और आगे जाओ, और आगे जाओ, और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए। इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज, सेकेंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, थर्ड ऑर्डर डार्क फ्रिंज। इसको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। इसकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी मैंने बता दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटेंसिटी। इधर भी वैसे ही होगा, इधर भी सेम प्रोसेस है, इंटेंसिटी डिक्रीज आउट कर जाती है। होता क्या है कि जनरली ये जो इंटेंसिटी हो गई फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की ऑलमोस्ट 4% होती है इसकी, तो काफी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है यार, यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ से लाइट इल्यूमिनेट की है, ये स्क्रीन है। तो ज्योमेट्रिकल शैडो में ये थोड़ी है कि पूरा ज्योमेट्रिकल शैडो कवर कर जाएगा ये लाइट, ऑब्वियस है कुछ रीजन तक जाएगा। आप यहाँ पे एक लाइट फोकस करोगे तो इस रीजन में हमें ज्यादा इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा ना, जो दूर है उस पर कम जाएगा। ऑब्वियस है ना, अपर्चर काफी छोटा है, तो अपर्चर छोटा क्यों रखना है, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो यूज करते हैं वो काफी कम होती है, इसलिए अपर्चर भी हमें छोटा रखना होता है ताकि डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें सही से देखने को मिले, इसलिए ये इंटेंसिटी डिक्रीज आउट होती जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। इफ यू लाइक माय वीडियो then subscribe and share it, okay, also comment it so that I can improve myself. Thank you.